Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 29th of October 2020 Thursday. Inspiration of the day is you don't always get what you wish for, you get what you work for. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Tata Sons reverse interrupts offer to buy AirAsia stake. The Tata Group has refused to acknowledge an offer by US-based firm Interrupts Incorporation to buy 49% in AirAsia India. AirAsia India is basically the joint venture of AirAsia Bharat and Tata Sons. In that, AirAsia hold 49% of stake, whereas Tata Sons hold 51% of the stake at a same valuation. And we have discussed into the previous news and previous videos as well that because of some financial problem or financial distress situation in Malaysia, AirAsia Bharat wants to exit from Indian business or want to exit from this particular Indian venture. और उसको लेकर के एयर एशिया बारात ने रिसेंट अनाउंसमेंट भी किए थे कि एयर एशिया इंडिया में जो भी बारात का स्टेक है उसको सेल आउट करके एयर एशिया बारात इंडिया के वेंचर से एग्जिट करना चाहती है सो दैट एयर एशिया बारात कैन एक्चुअली फोकस ऑन देयर होम टाउन or their domestic business that is situated in Malaysia. And after this expression of AirAsia Bharat, number of companies have shown keen interest towards buying 49% share of AirAsia Bharat into AirAsia India venture. In line with that, US-based fund Interrupts Incorporation have shown keen interest to AirAsia Bharat that company is ready to buy 49%, total 49% of stake of AirAsia Bharat into AirAsia India venture. But on this proposal, Tata Group consent is necessary. Why? Because Tata Sons hold the 51% of the share of AirAsia India, and by using this right of first refusal, Tata Sons has refused to acknowledge the offer given by US-based fund Interrupts Incorporation. Even people aware about the matter are saying that Interrupts had not only offered to buy 49% owned by AirAsia Bharat, but also the Tata Sons 51% at the same valuation. इट मीन्स इंटरप्ट्स ने केवल एयर एशिया बरहात को ही ऑफर नहीं दिया था 49% स्टेक खरीदने का, टाटा सन्स को भी ऑफर दिया था 51% स्टेक जो टाटा होल्ड करती है उसको भी खरीदने का एट अ सेम वैल्यूएशन. बट बीइंग अ मेजॉरिटी स्टेक होल्डर, Tata Sons or Tata Group has used its right of first refusal, that is called as ROFR, and rejected the offer made by Interrupts. हालांकि टाटा सन्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है इस चीज़ को लेकर के कि वो इस पर्टिकुलर डील पर एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, बट द पीपल अवेयर अबाउट द मैटर आर सेइंग दैट टाटा इज नाउ not going to accept this offer neither for 51% of stake held by Tata Sons nor for 49% stake held by AirAsia. Even if you remember, we have discussed in the previous videos as well, the Tata Sons have shown keen interest towards buying back their 49% फ्रॉम एयर एशिया बहार. तो टाटा की पहले भी ये कोशिश थी कि जो 49% स्टेक है एयर एशिया बहार का उसको टाटा खुद खरीद ले. हालांकि इस प्रपोजल पर भी कोई मटेरियल एग्रीमेंट सामने नहीं आया, लेकिन जो इंटरप्ट का ऑफ़र है उस ऑफ़र पर एयर एशिया बरात का एग्रीमेंट आया. एयर एशिया बरात ने उस ऑफ़र को बैक किया था जिसमें अप्रॉक्सीमेटली उसको $54 मिलियन मिल रहे थे 49% स्टेक सेल करने पर. हालांकि टाटा सन्स ने अभी इस पर कोई रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं किया है, बट एज पर द information coming from the people aware about the matter, Tata has refused this offer of Interrupts, not only for 51% of the stake held by Tata Sons as well as 49% owned by AirAsia Bharat.
तो अभी के लिए इंटरप्ट्स का ऑफर रिफ्यूज़ कर दिया है टाटा ने, एंड मोस्ट लाइकली it will happen that Tata will buy the 49% of all 49% of the stake held by Bharat Company. This is the timeline that you can go with. June 2014, AirAsia India, a joint venture between Tata Sons and Malaysia Air Asia Bharat, begins to operate. And after 2014, number of events happened in 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. And people are expecting that it is most likely that Tata Sun will acquire all the 100% of AirAsia India. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 given on page number 1. Amazon officials appear before House panel. Government of India is actually drafting the Personal Data Protection Bill 2019 in order to protect the data privacy. Data privacy इंडिया में बहुत टाइम से नेगोशिएशन में चल रहा है. इट्स अ हॉट टॉपिक. नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स, कंपनीज और लीडर्स आर इन्वॉल्व इनटू दैट डिस्कशन. एंड आधार के बाद इस पर्टिकुलर डेटा प्राइवेसी के इशू ने बहुत ज़्यादा ग्राउंड गेन किया है, जिसको लेकर के जो एक एजुकेटेड सेक्शन है सोसाइटी का, दे आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर डेटा प्राइवेसी. इवन इन द सुप्रीम कोर्ट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट प्राइवेसी इज़ द फंडामेंटल राइट. अगर हम बात करें डेटा स्टोरेज को लेकर के, उसको लेकर भी बहुत सारी एमएनसीज और गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितना भी डेटा जितनी ई कॉमर्स कंपनीज या आईटी कंपनीज कलेक्ट करती हैं, इट शुड बी stored into Indian server within the boundary of India. एमएनसीज का ये कहना है कि इंडिया में डेटा प्राइवेसी को लेकर के लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं. बहुत बार डेटा का मिसयूज़ देखा गया है. इन केस ऑफ इवन आधार बहुत बार डेटा लीक भी हुआ है. तो जो फॉरेन एमएनसीज हैं, दे आर नॉट एक्चुअली रेडी टू स्टोर डेटा इनटू इंडियन बाउंड्रीज, because as per their opinion, Indian economy or Indian nations do not have the infrastructure or the rules and regulation to protect the privacy of data of their consumer. तो उसको लेकर के अब इन सब बहुत सारे इश्यूज हैं. हर फ्रंट में डेटा प्राइवेसी को लेकर के इशू हैं. तो इसीलिए अब गवर्नमेंट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 लेकर के आई थी, और उसको अभी फ़िलहाल के लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में सबमिट किया गया है, सो दैट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कैन टेक द ओपिनियन ऑफ different stakeholders on data privacy and data protection bill, so that a full-fledged bill or act can be drafted. तो उसी को लेकर के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, जस्ट लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल, फेसबुक, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव को इनविटेशन दिया था दैट दे शुड प्रेजेंट देमसेल्फ इनटू द फ्रंट ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दैट इज जेपीसी, लुकिंग इनटू द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, जिसको लेकर के अमेजोन, जो ई कॉमर्स जियंट अमेजोन है, उसके टॉप ऑफिशियल ने उस इनविटेशन को मना कर दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि दे कैन नॉट एक्चुअली travel due to the COVID-19, or travel restrictions are very high due to the COVID-19. Therefore, they cannot appear in front of JPC, जिसको लेकर के JPC ने बहुत स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्ड दिया था और कहा था कि why not this refusal of e-commerce giant Amazon should be considered as breach of privilege of parliament, and why parliament should not take coercive action against the e-commerce behemoth. तो इसको लेकर के जेपीसी का बहुत स्ट्रिक्ट क्रिटिसिज्म आया था कि दिस विल बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, और इस रिस्पॉन्ड के लिए अमेजोन के इस रिस्पॉन्ड के लिए अमेजोन पर कोर्सिव एक्शन प्लान किया जाएगा बाय पार्लियामेंट. लेटर ऑन अमेजोन ने डिसाइड किया दैट अमेजोन experts or Amazon top officials will appear in front of JPC and will make the presentation on data protection and data storage. So now a team of experts at Amazon Web Services and Amazon India, including Rakesh Bakshi, that is Head Legal Vice President, Associate General Counsel, and
Chetan Krishnaswamy, Vice President Public Policy, made a detailed presentation before the JPC on PDP bill. So finally, Amazon के ऑफिशियल ने अपना presentation दे दिया है in front of JPC. Other companies like Facebook, Google, they are also expected to appear before the JPC this week. तो नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है इस पर्टिकुलर डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के, और उनसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट आर देयर पॉलिसीज रिगार्डिंग द डेटा प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कंज्यूमर। जो इंडियन कंज्यूमर के सर्च हिस्ट्री से, उनके प्रोफाइल से, उनके बाइंग बिहेवियर से जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसके प्राइवेसी के क्या रूल हैं, अमेज़ॉन, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनीज उन्हें कहाँ स्टोर कर रही हैं, what they are actually planning after this particular bill। तो इस तरह के कई सारे इश्यूज उनसे पूछेगा और उसको लेकर के अभी अमेज़ॉन के ऑफिशियल ने प्रेजेंटेशन दिया एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि और कंपनीज को भी जेपीसी के सामने रिप्रेजेंट होना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को लेकर के प्रेजेंटेशंस दे रही हैं कंपनी, और जेपीसी उन पर उनके ओपिनियन ले रही है इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट द और ड्राफ्ट द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6। SC verdict today on IBBI plea on personal guarantee cases. The Supreme Court heard the petition of Insolvency and Bankruptcy Board of India, that is called as IBBI, to transfer all the ongoing cases of personal guarantee invocation currently under the dispute, including the Reliance Group Anil Ambani, from various high courts to the apex court and club them together। हम सभी को पता है कि जो रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं दैट इज़ अनिल अंबानी, उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इंसॉल्वेंसी के केस चल रहे हैं इनटू डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से केस के रिजोल्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, केस के सॉल्व में, आर्बिट्रेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर सुप्रीम कोर्ट में डेट अलग है, केस की पेंडेंसी अलग है, और हर केस में रिप्रेजेंट होने के लिए जो क्रेडिटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन डाली है और ये कहा है कि जितने भी केसेस चल रहे हैं अगेंस्ट अनिल अंबानी इनटू डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, दैट ऑल शुड ट्रांसफर टू द एपेक्स कोर्ट मीन सुप्रीम कोर्ट, and all should be clubbed together so that litigation process can be fastened and recovery can be ensured with the minimum time period. The Supreme Court is likely to give its order on Thursday, and the people aware about the matter and the senior lawyers are saying that it is more likely that Supreme Court transfer all the cases to itself. It means it is more likely that petition will get accepted by Supreme Court, क्योंकि इसमें जिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड हाई कोर्ट्स, लिमिटेड जज, तो जितने अलग अलग केसेस चल रहे हैं इट्स जस्ट अ मेयर और शेयर वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज एंड द वेस्टेज ऑफ द टाइम ऑफ द जजेस। जैसा कि हम सभी को पता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, जज की शॉर्टेज इंडिया में हमेशा ही रहती है। इसीलिए जो डिफरेंट केसेस चल रहे हैं उन सबको क्यों ना क्लब कर दिया जाए अनिल अंबानी के, और एक जगह उसका एग्जीक्यूशन किया जाए, लिटिगेशन किया जाए, जिससे कि प्रोसेस भी स्पीड अप होगी, रिकवरी भी जल्दी होगी और उस पर्टिकुलर केस पर वर्डिक्ट भी आएगा। जो रिसोर्स हैं उनको कहीं और एक किसी मोर इम्पॉर्टेंट, मोर रेलिवेंट मैटर में या केस में डाइवर्ट किया जा सकेगा। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इसीलिए एक पटिशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में। बिसाइड अंबानीज promoter facing invocation on personal guarantee include Sanjay Singhal of Bhushan Power Steel, Atul Punj founder of Punj Lloyd and others। तो अगर अनिल अंबानी के केस में या रिलायंस के केस में सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर पटिशन को एक्सेप्ट करती है और बहुत सारे जो केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट अनिल अंबानी उनको क्लब करके
एपेक्स कोर्ट में उनकी सुनवाई करती है, तो इट इज़ लाइकली दैट इन अदर केसेस एज वेल this type of clubbing can be seen. All matters are presently under litigation. Meanwhile, in an affidavit filed before Delhi High Court, the Ministry of Corporate Affairs has defended using the provision in the Insolvency and Bankruptcy Code to invoke promoters' guarantee of corporate debtors in the matter of Anil Ambani's personal insolvency. यहाँ पर कुछ issues involve हैं. एक पहला personal guarantee कि बहुत बार ऐसा देखा गया था रिसेंटली कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती थी, बट जो उसके डायरेक्टर्स होते थे, जो उसके एक्चुअल ओनर्स होते थे, उन पर पर्सनल गारंटी इन्वोक नहीं करी जाती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब जो डायरेक्टर्स हैं उन पर भी पर्सनल गारंटी इन्वोक करी जाने लगी है। तो इसीलिए अनिल अंबानी पर भी पर्सनल गारंटी इन्वोक करी गई थी। पर्सनल गारंटी इन्वोक करी गई इसका मतलब कि अनिल अंबानी के जितने भी पर्सनल रिसोर्सेज हैं, पर्सनल एसेट्स हैं, उनको जब्त कर लिया जाएगा या उनको यूज़ किया जाएगा इन ऑर्डर टू फुलफिल द लाइबिलिटी ऑफ द रिलायंस कंपनी। क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा जाता था कि जो डायरेक्टर्स होते थे वो कंपनी को डिफ़ॉल्ट करके, कंपनी को इंसॉल्वेंट करके बाय डिफरेंट मींस वो अपने असेट्स बना लेते थे और अलग हो जाते थे। ना उनको कोई पेनल्टी मिलती थी, ना ही उनके अगेंस्ट कोई लिटिगेशन होता था, और दे हैव क्रिएटेड द ह्यूज अमाउंट ऑफ असेट्स और कंपनी को डिफ़ॉल्ट कर दिया, कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई। जिससे कि कई बार ऐसा होता था कि डायरेक्टर्स जो होते थे वो कंपनी में ऑपरेट करते थे, तो वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए डिसीजन लेते थे रादर देन कंपनी के बेनिफिट के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन पर कोई पर्सनल गारंटी इन्वोक नहीं करी जाएगी, उनके असेट्स, उनके पर्सनल असेट्स, उनके पर्सनल रिसोर्सेज सेफ रहेंगे, उनको कंपनी की गारंटी के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। बट अब रिसेंटली ये स्टार्ट हो चुका है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, जो कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, उन पर पर्सनल गारंटी, पर्सनल इंसॉल्वेंसी भी इन्वोक करी जाएगी अगर उनकी कंपनी डिफ़ॉल्ट होती है। इट मीन्स उनके पर्सनल असेट्स को, पर्सनल रिसोर्सेज को भी यूज़ किया जाएगा इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन और द गारंटी गिवन बाय द कंपनी। A senior MCA official said a notice was issued, so we have to file a response. The ministry has to defend its law. The law is perfect and there is nothing wrong with it. तो अभी अनिल अंबानी की पर्सनल गारंटी को भी लेकर के केस चल रहा है। इस तरह के बहुत सारे केस पर्सनल गारंटी को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इसी तरह बहुत सारे अदर केसेस जो कि क्रेडिटर्स ने इनिशिएट किए हैं अगेंस्ट अनिल अंबानी इन ऑर्डर टू गेट देयर मनी बैक। तो इन सारे केसेस के को अब सुप्रीम कोर्ट हो सकता है क्लब करके उनका लिटिगेशन खुद करे। सो दिस इज द पर्सनल गारंटी इन्वोक्ड सो फार ऑन अनिल अंबानी एंड संजय सिंघल। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 8। जंप इन रिटर्न्स फाइलिंग में टेक GST mop up to ₹1 trillion this month. Bolstered by a jump in return filing, the Finance Ministry is hopeful that GST collection would cross the 1 trillion mark in the month of October for the first time in last 8 months. So now this GST issue may resolve as the GST collection will increase. जैसा कि हम सभी को पता है GST कलेक्शन को, सेस को लेकर के स्टेट्स गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम से टशल चल रहा है, क्योंकि स्टेट्स गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट नहीं किया गया बिकॉज ऑफ देयर GST और बिकॉज ऑफ देयर रिवेन्यू लॉसेस। और उसका सीधा रीज़न ये था GST कलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ द सबड्यूड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और लॉकडाउन owing to the COVID-19 पैंडेमिक। बट नाउ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इकोनॉमी चूँकि रिकवरी पर चल चुकी है, रिकवरी के पाथ पर आ चुकी है, जो लॉकडाउन थे बहुत जगह लगे हुए थे अब वो रीओपन हो चुके हैं, नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैज़ रिज्यूम्ड। तो इस अक्टूबर के मंथ में जो GST कलेक्शन होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन का कलेक्शन होगा, and this 1 trillion mark will be crossed first time after the 8 months, because as many as 7.5 million returns have been filed as of October 25 against
6.3 million till the corresponding day of the previous month. So it is quite hopeful situation for Ministry of Finance as well as the union government, because number of states, opposition led states, are actually planning to go to Supreme Court for this particular GST revenue issue. And this is the GST collection in terms of rupees crore that we can see. अप्रैल के मंथ में सबसे ज़्यादा फॉल देखने को मिलेगा, 32,172 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, जो कि जनवरी में अप्रॉक्सीमेटली 1,10,818 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। और इस बार कहा जा रहा है कि अक्टूबर के मंथ में ये 1 ट्रिलियन का जो मार्क है ये क्रॉस हो जाएगा जीएसटी कलेक्शन में, एंड इट इज़ इंडिकेटिंग द क्वाइट गुड रिकवरी इनटू द इंडियन इकोनॉमी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 8। नो इन्फो ऑन आरोग्य सेतु क्रिएटर्स से सेंटर CIC फ्यूम्स। आरोग्य सेतु ऐप, जैसा कि हम सभी को पता है, कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रैक करने के लिए या इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, आरोग्य सेतु। जब से ये आरोग्य सेतु लॉन्च हुआ था तब से डेटा प्राइवेसी को लेकर के इस पर्टिकुलर ऐप में जो डेटा प्राइवेसी के रूल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न थे एक्सपर्ट्स के माइंड में। इवन नाउ the Central Information Commission has issued show cause notice to National E-Governance Division, that is NEGD, and the National Informatics Center NIC and the Department of Electronics as to why a penalty under Right of Information Act should not be imposed on them for obstructing the flow of information। कौन से इंफॉर्मेशन का फ्लो ऑब्स्टिकल किया है इन तीन गवर्नमेंट एंटिटीज़ ने? तीन गवर्नमेंट एंटिटीज़ कौन सी? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली आरोग्य सेतु को लेकर के एक आरटीआई फाइल करी थी एक आरटीआई एक्टिविस्ट सौरव दास ने। उन्होंने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, एंड व्हाट आर दोज क्वेश्चंस ये थे कि किसने इस आरोग्य सेतु ऐप को बनाया है, मीन्स किस कंपनी ने इस आरोग्य सेतु को डेवलप किया है, एंड विच कंपनी और विच इंस्टीट्यूशन और विच गवर्नमेंट बॉडी प्रपोज द नीड फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप। और जिस पर्टिकुलर कंपनी ने इस ऐप को बनाया है उस कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में कैसे रिलेशन है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, क्या एग्रीमेंट साइन हुआ था जिस पर्टिकुलर कंपनी ने आरोग्य सेतु ऐप को बनाया है। बेसिकली अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप की सिक्योरिटी पर क्वेश्चन उठाए कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि जिसने इतना क्रूशल ऐप बनाया है, जो कि इंडिया के लगभग अप्रॉक्सीमेटली हर सिटीजन के मोबाइल ऐप पर है, जिससे कि उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी जा सकती है। गवर्नमेंट ने कैसा एग्रीमेंट किया है उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ है, गवर्नमेंट कैसे ये इंश्योर कर सकती है कि जो भी डेटा आरोग्य सेतु पर कलेक्ट हो रहा है उसका मिसयूज़ नहीं होगा, वो कंपनी जिसने इस आरोग्य सेतु ऐप को बनाया है वो उसका डेटा मिसयूज़ नहीं करेगी, उस डेटा को कहाँ स्टोर करेगी। बेसिकली यही सारे इश्यूज़ डेटा प्राइवेसी को लेकर के अभी हमने डिस्कस किए। तो इस आरटीआई पर एनआईसी ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने रिप्लाई किया कि उनके पास इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस कंपनी ने ये ऐप बनाया है, किस कंपनी ने या किस एंटिटी ने इस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप की नीड को जनरेट किया या बोला है कि इस तरह के एप्लीकेशन की ज़रूरत है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर पाए, किस तरह का एग्रीमेंट हुआ है उस कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में। इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन एनआईसी के पास नहीं है। एंड एज पर द आरटीआई एक्ट, अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मांगता है एक्सेप्ट जो कि एग्जेम्प्टेड है उनके अलावा, तो वो गवर्नमेंट एंटिटी, वो पब्लिक एंटिटी, वो स्टेट एंटिटी कंपल है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वो इंफॉर्मेशन डेसिफर करने के लिए, देने के लिए। बट यहाँ पर एनआईसी ने आरटीआई एक्टिविस्ट सौरव दास की इस पिटीशन को, इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हुए ये कह दिया कि एनआईसी के पास इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको लेकर के सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन दैट इज सीआईसी ने
3 गवर्नमेंट बॉडीज़ को नोटिस इशू किया है और ये कहा है कि क्यों उनके अगेंस्ट कोई भी पेनल्टी ना लगाई जाए, क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट किया है। कैसे ऑब्स्ट्रक्ट किया? जो मिस्टर सौरभ दास ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो इन्फॉर्मेशन उनको क्यों नहीं प्रोवाइड करी गई? देन वाई Center Information Commission should not take case against these three government entities। और जैसे ही गवर्नमेंट को ये या इन 3 बॉडीज़ को सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन का नोटिस इशू हुआ, उस पर गवर्नमेंट ने एक बहुत इवेजिव सा आंसर दिया। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया, दिस हैज़ बीन लॉन्च इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर विद द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इसको केवल 21 डेज में डेवलप किया गया विद सो मेनी एक्सपर्टाइज in order to respond against the exigencies created by the pandemic। और इस ऐप का केवल पर्पस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है सो दैट इन्फेक्शन रेट कैन बी मिनिमाइज। और डेवलपमेंट के केस में गवर्नमेंट का ये कहना है कि दिस पर्टिकुलर ऐप हैव बीन क्रिएटेड बाय द Indian minds from industry, academia, government working around the clock to build this robust, scalable and secure application। गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो प्रॉपर नेसेसरी एक्शन ले रही है इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ CIC ने जो ऑर्डर दिए हैं, जो नोटिस इशू किया है, उसको फॉलो करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर स्टेप ले रही है। बहुत जल्दी ये इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर RTI एक्टिविस्ट को डिस्क्लोज कर दी जाएगी। तो अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने भी बहुत गोलमोल सा जवाब दिया है कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने, किस पर्टिकुलर कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप को डेवलप किया है, व्हाट इज़ द एग्रीमेंट डिटेल। इस तरह के कोई भी सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने नहीं डिस्क्लोज करी है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। गिग वर्कर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर सोशल सिक्योरिटी कवर। For the first time, gig workers would have asked to make a contribution for availing provident fund and insurance coverage or benefits under the new social security framework। तो रिसेंटली जो सोशल सिक्योरिटी लॉ लेबर कोड में पास हुआ है उसके अंतर्गत जो गिग वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, अब उनको भी सोशल सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया जाएगा। दे कैन ऑल्सो ऑप्ट द फैसिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड इंश्योरेंस कवरेज, एंड फॉर दैट दे हैव टू गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम और इंस्टॉलमेंट। और जैसा कि हम सभी जानते हैं आगे आने वाला टाइम है, जो इकोनॉमी है वहाँ पर गिग वर्कर्स की, इनफॉर्मल वर्कर्स की, ऑन डिमांड वर्कर्स की, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की, इन सब की डिमांड बढ़ने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं ओला, उबर, स्विगी, अर्बन कैब, इन सब में जिस तरह के वर्कर जो एम्प्लॉयमेंट होता है दैट इज़ एक्चुअली गिग वर्कर्स। इन में जो आपने देखा होगा फूड डिलीवरी वाले आते हैं, कैब के जो ओला उबर में जो कैब में जो ड्राइवर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली द फाइन एग्जांपल ऑफ गिग वर्कर। इनको बोलते हैं ऑन डिमांड वर्कर, इनफॉर्मल वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, बहुत सारे नाम हैं इनके। बेसिकली एक सिंपल टर्म में अगर हम बोले तो गिग वर्कर्स वो वर्कर होते हैं जो कंपनी के डायरेक्ट पेरोल पर नहीं होते, कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉई नहीं होते। ऑन डिमांड वर्कर होते हैं, मीन्स कंपनी को जब जरूरत होगी तब उनसे काम कराएगी कंपनी, और जितना काम कराएगी उसका पेमेंट देगी। देयर इज नो लायबिलिटी ऑन कंपनी टू प्रोवाइड एनी सोशल सिक्योरिटी कवर टू देयर गिग वर्कर, ऑन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, एडॉक वर्कर, ऑन डिमांड वर्कर और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। तो अभी तक इन सब के लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी कवर नहीं था, बट जो रिसेंटली लेबर कोड पास हुआ है उनमें गिग वर्कर्स को भी इंक्लूड किया गया। नाउ दे कैन ऑल्सो अवेल द फैसिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड इंश्योरेंस coverage। And the government is now planning to design the rule under the Code on Social Security 2020 in such a manner that the finance of gig companies do not take a hit while contributing towards the National Security Fund, जो basically gig workers के लिए बनाया गया National Social Security Fund under Social Security 2020 Code। And government is likely to start seeking contribution from gig companies towards the fund from April 1, 2021। तो अब इससे जो गिग वर्कर हैं जो बेसिकली एक्सपोज रहते हैं बहुत ज़्यादा रिस्क से, अब उनको भी थोड़ा सा रिस्क कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा।
अंडर द न्यू कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मोस्ट एजेंसीज अंडर एस्टिमेटिंग इंडियाज ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 22। सान्याल, Principal Economist Advisor Sanjeev Sanyal believes that most agencies have underestimated the economic growth of India for the fiscal year 2021-22। Although इस पर्टिकुलर फिजिकल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस पर सभी एग्री कर रहे हैं, यूनानिमस एग्रीमेंट है। लेकिन जो 22 फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, इट मीन्स जो इसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर फिजिकल ईयर आएगा, उसको लेकर के जितनी भी एजेंसीज हैं वो अंडर एस्टिमेट कर रही इंडिया की ग्रोथ को, ऐसा कहना है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र संजीव सान्याल का। और अगर हम बात करें कि क्या एस्टिमेट्स हैं, फोरकास्ट है, तो वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली 5.4% का एस्टिमेट दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडियन इकोनॉमी 5.4% से ग्रो करेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 8% का, IMF ने 8.8% का प्रोजेक्शन किया है। हालांकि मिस्टर सान्याल का ये कहना है कि जब एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं देन दीज कंपनीज और दीज एजेंसीज सेज दैट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द लो बेस। तो मिस्टर सान्याल का कहना है कि बेस लो है, ये तो एजेंसीज को ऑलरेडी पता है, देन वाई दे आर नॉट एक्चुअली weighing or mitigating that base effect, and why they are not coming up with the actual data or the real forecast. And he is quite positive that all these agencies will definitely upgrade their forecast into the next year. So as per him, the Indian economy may grow more than 8.8% rate into the next fiscal year. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। SBI raises $1 billion from JBIC other lenders. The country's largest lender, State Bank of India, inked a pact to raise approximately $1 billion loan from the Japan Bank for International Corporation and other Japanese lenders like SMBC, MUFG Bank and Mizo Bank on Wednesday. अब बेसिकली जो SBI ने ये लोन लिया है अपने जापानीज़ काउंटर पार्ट से या जापानीज़ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से, दिस पर्टिकुलर लोन विल बी यूज टू प्रोवाइड फंड टू द मैन्युफैक्चरर, सप्लायर्स एंड द डीलर्स ऑफ जापानीज़ ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया। तो स्पेसिफिकली उन मैन्युफैक्चरर्स को, उन सप्लायर को ये लोन दिया जाएगा जो कि जापानीज़ ऑटोमोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो दीज आर untied loans, meaning SBI has a freedom to use this money to lend. They also do not come with any conditions attached for lending to specific project or प्रोग्राम। तो अनटाइड लोन्स हैं बेसिकली जो लेंडर्स ने, SBI ने पैसा लिया है जापानीज़ लेंडर से, और इसका बेसिक पर्पस है कि इंडिया में जापान ऑटोमोबाइल को प्रमोट करना, जो कि जितने भी ऐसे मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स या डीलर्स हैं जो कि जापानीज़ ऑटोमोबाइल के लिए काम कर रहे हैं, उनको अगर मनी अवेलेबिलिटी इंश्योर रहेगी देन उनका बिजनेस बढ़ेगा और जापान का इम्पोर्ट भी इंडिया में बढ़ेगा। तो बेसिक पर्पस ये है बेसिकली। And apart from this SBI pact, NTPC has also signed an agreement with the Japan Bank for International Corporation for a loan of worth rupees 3,500 crore. This is not the first time that Japanese companies or Japanese banks are actually providing loan to Indian banks. प्रीवियसली हमने इस तरह के और सारे पैक्ट्स भी देखे हैं जहाँ पर जापान ने इंडिया को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, जैसा कि हम सबके पास हाई स्पीड मेट्रो वाला बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, दैट ऑल्सो जापान फंडेड प्रोजेक्ट। आज की न्यूज़ ऑफ द डे, नो इन्फो ऑन आरोग्य सेतु क्रिएटर से CIC फ्यूम्स। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ में आप CIC का क्या रोल होता है, NIC क्या है, कैसी कंपनी है, गवर्नमेंट एंटिटी है, कैसे बनाएगी, उसका बेसिक मैंडेट क्या है, इस तरह के जितने भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ के नाम आए उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, बिकॉज दिस में कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोबेबल क्वेश्चन इनटू योर अपकमिंग एग्जाम्स। All these are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.